First of all, good afternoon, everyone, all the staff member, teachers, principal, and dear students. First of all, I congratulate you all on this Foundation Day. I am really very happy to be part of this online session because I have very close connection with this institution, with this college, and many a times I have been to this campus to train the students for various topics like employability skills, communication skill, and we conducted campus to corporate programs also. And I have a very personal attachment with this institute. I wish I could be there in the institute. So as today I was told about to guide the students about personality development. So before we go ahead, I would like to ask you some questions. So to my students, all the students, I have a question for you. Shall I continue in English or shall I use mixed language? Because your understanding is important. Should I go? Yes, mixed language. Okay, because your understanding is important. So first of all, I would introduce myself. My name is Parvez Khan, and I am a soft skill trainer. I am a corporate behavioral change trainer. I have conducted more than 500 workshop all over India for different training programs like mind programming, communication skill, employability skill, corporate behavior change training, and more than 1 lakh people have been trained in my training workshop. And I have my own institute in the name of Key Life Skills Training and Placement Institute. For more detail, you can visit the website keylifeskills.in. And I am a lecturer in a college also. In a pharmacy college, I conduct communication skill, and for last 10 years I have been training for, in short we can say, personality development. Actually there are various branches of personality development, but we generally we know only one name, that is called personality development. So today we'll talk about personality development. Okay, now I will start with दी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, यानी हमारे लाइफ के जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं हम उसकी बात करते हैं. ठीक है, जब हम छोटे होते हैं है ना, स्कूल जाने से पहले वो एक स्टेज होता है कि जब हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा हमारी केयर करते हैं, है ना, बिकॉज केयरिंग अस इज देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी. देन वी ग्रो अप, दे सेंड अस टू स्कूल. Then it is the responsibility of school management and school teacher to impart some good qualities and knowledge in us. अब स्कूल की टीचर्स की ये जिम्मेदारी होती है कि वो हमको नॉलेज दे, हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज इंप्रूव करे. उसके बाद हम आते हैं कॉलेज. अब कॉलेज आने के बाद में हम एक सब्जेक्ट चूज करते हैं, हम उस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं और एक पर्टिकुलर फील्ड में हम अपना करियर बनाने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर भी आपके कॉलेज की, आपके टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, ये सब बहुत सारे एफर्ट्स लेते हैं. इन सबके एफर्ट्स लेने का एक ही पर्पस होता है कि इस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स का करियर ब्राइट हो और जिस पर्पस के लिए उन्होंने एडमिशन लिया है उनका वो पर्पस फुलफिल हो जाए. ठीक है, तो आपका एजुकेशन कंप्लीट होने तक आपके गोल अचीव करने में कई लोग आपकी हेल्प करते हैं और लाइफ का एक ऐसा स्टेज आता है, अब यहां पर आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो. अब आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते हो. ओके, यू बिकम इंडिपेंडेंट एंड नाउ यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन. अब जब तक आपका ग्रेजुएशन नहीं होता है तब तक अदर पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर करियर, फॉर योर डेवलपमेंट. But once you complete your education or you come to at a stage where you are completing your education, now you become responsible and now you have responsibility toward your family, toward your society, toward your country. अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अब आप पे बैक क्या करते हो अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को, अपनी कंट्री को. तो अब आपको जब पे बैक करना है, आपको जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से हैंडल करनी है, तो क्या आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करने के लिए कैपेबल हो या नहीं हो, अब ये आपको चेक करना होता है. ठीक है, अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करने के लिए बहुत सारी चीजें आपके माइंड में आती है कि एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अब आपके पास में कई ऑप्शंस होते हैं.
मैं इस फील्ड में जाऊं या उस फील्ड में जाऊं, मैं ये कंपनी ज्वाइन कर लूं या वो कंपनी ज्वाइन कर लूं, मैं अपनी सिटी में ही जॉब करूं या किसी और सिटी में जाके जॉब करूं, मैं जॉब करूं या मैं बिजनेस करूं, ये सारे कंफ्यूजन आपके माइंड में होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ एक एक एक्साइटमेंट भी होता है कि अभी तक मैं डिपेंडेंट था, नाउ आई एम गोइंग टू बिकम इंडिपेंडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू लीड पीपल, नाउ आई एम गोइंग टू फुलफिल माय ड्रीम्स आल्सो एंड माय फैमिलीज ड्रीम्स आल्सो। तो यहां पर इस स्टेज पे पहुंचने के बाद कंफ्यूजन, क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट, एम्बिशंस, ये सारी चीजें आपके माइंड में आती है, ठीक है। लेकिन इस स्टेज से आगे बढ़ने के लिए अब आपके अंदर कुछ क्वालिटीज की जरूरत होती है। कुछ क्वालिटीज होती है जिसकी बिना पर आप कैपेबल बन सकते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर सकते हो, और जो कुछ आपने गोल सेट किए हैं वो गोल आप अचीव कर सकते हो, ओनली ऑन अ कंडीशन इफ यू हैव सर्टेन क्वालिटीज। चलिए, कौन बताएगा मुझे क्या क्वालिटीज चाहिए? एक कैंडिडेट, एक स्टूडेंट को ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसमें वो कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जिसके बिना पर वो सक्सेसफुल करियर बिल्ड कर सकता है? यस स्टूडेंट्स, प्लीज शेयर योर व्यूज, देन वी विल कंटिन्यू। आपको क्या लगता है कौन सी क्वालिटीज की जरूरत होती है? या क्विकली प्लीज रिस्पॉन्ड। I just want to know what do you think communication skill. Okay, you can type also, very good. Someone said communication skill. Again, you can type the messages. Communication skill, again. Teamwork, very good. Teamwork, we need to have teamwork. चलिए, और वो कौन सी क्वालिटीज है जो आपको करियर में सक्सेसफुल बनाती है? हैविंग गुड रेज्यूम, ओके, रेज्यूम, हैविंग गुड रेज्यूम। सी, आपका जो रेज्यूम है वो आपका एंट्री पास है, गेट पास है, वो है ना, गेट पास है वो। रेज्यूम बनाना ठीक है, एक स्किल है, बट उसका बहुत शॉर्ट टर्म के लिए उसका आपका जो तो यूज होता है। कॉन्फिडेंस, वेरी गुड, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। चलिए, और क्या क्वालिटीज चाहिए? श्रायु सेठ कॉन्फिडेंस, सूरज सेठ नॉलेज, यशवंत से बेस्ट प्रेजेंटेशन, पॉजिटिव एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओके, पेशेंस, पेशेंस चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच चाहिए, वेरी गुड। चलिए, नाउ विल गो अहेड। मुझे यही सब सुनना था, ठीक है। पंक्चुअलिटी चाहिए, ठीक है। ये सारी क्वालिटीज हमको चाहिए। अगर ये क्वालिटीज हमारे अंदर है तो हमको अपने करियर के गोल अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। मैं आपके लिए बहुत इजी कर देता हूं, ठीक है। कि करियर अचीवमेंट के लिए जो क्वालिटीज हमको चाहिए, हम उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, ठीक है, 3 कैटेगरीज में। बिकॉज I also conduct interviews and I have conducted more than 50,000 interviews for various organizations, and generally I conduct banking interviews. So what we observe, I will share with you, ठीक है। कि जब एक कैंडिडेट इंटरव्यू को आता है तो तब हम उसके अंदर क्या देखते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपको भी आसानी हो जाए कि जब मैं इंटरव्यू को जाऊं, जब मैं अपना करियर बनाऊं, मैं कोई कंपनी अगर ज्वाइन करूं तो कंपनी वाले मेरे अंदर कौन सी क्वालिटीज ढूंढेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, आपने बहुत सारे क्वालिटीज यहां पर मेंशन की है, लेकिन इन सारी क्वालिटीज को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ओके। ओनली 3 कैटेगरीज, यू कैन नोट डाउन दैट, ओके। व्हाट इज दैट 3 कैटेगरीज? We can call them ASK, okay, ASK. What is ASK? A for attitude, S for skills and K for knowledge, okay। ये जो 3 का पैक है, ये अगर आप अच्छे से समझते हो तो आपको अपने स्किल्स डेवलप करने में भी आसानी होगी, ठीक है। So now we will discuss. So what I say here, for any successful career, I need to develop ASK. You can call it ask also, okay. So ASK, A for attitude, S for skills and K for knowledge, okay. Because when a candidate comes for interview, we see these 3 things in that candidate: the candidate's knowledge, candidate's skills and candidate's attitude, okay.
ओके, यहाँ पर शुभम ने बहुत सारे क्वालिटीज बताई है, कम्युनिकेशन, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, डिपेंडेबिलिटी, टीम वर्क, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम 3 में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ASK, एटीट्यूड, स्किल्स एंड नॉलेज, ठीक है। अब ये कहां से मिलेगा आपको और ये कहां से आप डेवलप करोगे, ठीक है, और किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, हम इस पर बात करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नॉलेज की। के नॉलेज, नॉलेज आपको कॉलेज से मिलता है, इंस्टीट्यूट से मिलता है, आप बुक्स पढ़ते हो, वहां से आपको नॉलेज मिल जाती है, ठीक है। सो नॉलेज गेन करने के रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और नॉलेज ज्यादातर कैंडिडेट्स में जो कॉमन चीज होती है वो होती है नॉलेज। नॉलेज सभी के पास होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इंटरव्यू को मेरे पास 50 लोग आते हैं और वो सब इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट है, तो 50 के 50 में एक चीज कॉमन है, वो ये कि पूरे 50 कैंडिडेट को इंजीनियरिंग की नॉलेज है, ठीक है। तो अगर मैं नॉलेज के बेस पर उनका कंपटीशन रखूं तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा आइडेंटिफाई करना हु इज द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट। ओके, सो नॉलेज you gain from college, books, coaching classes, okay, from different sources you gain the knowledge, and anybody can gain the knowledge, okay, anybody can gain the knowledge, okay. Now second is skill. अब अगर हम बात करें स्किल की, तो जहां मैंने कहा कि 50 कैंडिडेट्स को अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है, लेकिन जब मैं स्किल चेक करने जाऊंगा तो ये क्वांटिटी कम हो जाएगी। अब पूरे 50 के 50 में एक जैसे स्किल्स नहीं होंगे, हो सकता है 10-15, बस 10-15 कैंडिडेट ऐसे होंगे कि जिनके पास नॉलेज के साथ स्किल भी होगी। तो यहां पर कंपटीशन अब टफ कब हो जाएगा, जब बात स्किल की आएगी। नाउ विल डिस्कस व्हाट इज स्किल। ओके, अब स्किल्स क्या होती है, ठीक है। तो स्किल्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्किल्स, एक होती है हार्ड स्किल और एक होती है सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल क्या होती है कि you develop a skill by attending a institute, by attending a training center. For example, कंप्यूटर ऑपरेट करना हार्ड स्किल है, कार ड्राइविंग करना हार्ड स्किल है, ठीक है। कोई एप्लीकेशन बना लेना वो हार्ड स्किल है, कोई सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना ये हार्ड स्किल है, ठीक है। और हार्ड स्किल एक इंस्टीट्यूट में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद वो आ जाती है, उसका सर्टिफिकेट भी मिलता है, ठीक है। और आप किसी को वो स्किल्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। बट व्हाट इज सॉफ्ट स्किल? सॉफ्ट स्किल इज समथिंग विच यू हैव टू डेवलप ओनली। वो सिर्फ आपको डेवलप करनी पड़ती है। अगर आप डेवलप नहीं करोगे तो दुनिया का कोई इंस्टीट्यूट आपके अंदर वो स्किल डेवलप नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन स्किल। अगर कम्युनिकेशन आप खुद एफर्ट नहीं लोगे, आप खुद अगर वो कम्युनिकेशन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपका कम्युनिकेशन डेवलप नहीं हो सकता। उसी के साथ साथ माइंड प्रोग्रामिंग, माइंड प्रोग्रामिंग सॉफ्ट स्किल है। अगर आप खुद एफर्ट लेकर अपना माइंड प्रोग्रामिंग नहीं करते हो तो कोई दूसरा आपकी माइंड प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता। डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप क्वालिटी, टीम बिल्डिंग, टीम वर्क, ओके, फ्लेक्सिबिलिटी, पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, ये होते हैं सॉफ्ट स्किल। अब सॉफ्ट स्किल का कोई इंस्टीट्यूट नहीं होता, सॉफ्ट स्किल का कोई सिलेबस नहीं होता, और सॉफ्ट स्किल करने के बाद उसका सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता, क्योंकि आप किसी को अपना सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट पे नहीं दिखा सकते। आप ये प्रूफ कर सकते हो क्या, सर मेरे में बहुत कॉन्फिडेंस है, ये रहा मेरा कॉन्फिडेंस का सर्टिफिकेट। क्या आप किसी को ये कहकर सेटिस्फाई कर सकते हो कि सर मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, ये रहा मेरा कम्युनिकेशन का सर्टिफिकेट। तो यहां समझने की जरूरत है कि हार्ड स्किल ये इंस्टीट्यूट से आप सीख सकते हो, उसका सर्टिफिकेट दिखा सकते हो, लेकिन सॉफ्ट स्किल ये आपको डेवलप ही करना पड़ती है, और सॉफ्ट स्किल आपकी पर्सनालिटी में होती है। जहां आप जाते हो आपका सॉफ्ट स्किल आपके साथ जाता है, ठीक है। और आपका सॉफ्ट स्किल आपको हर सिचुएशन में हेल्प करता है, फिर चाहे वो प्रोफेशनल सिचुएशन हो, सोशल सिचुएशन हो या पर्सनल सिचुएशन हो, आपके सॉफ्ट स्किल आपको हमेशा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सॉफ्ट स्किल। तो सॉफ्ट स्किल में सबसे जो की सॉफ्ट स्किल्स है वो है कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड टीम वर्क। इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है आजकल इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा सॉफ्ट स्किल। स्किल्स की हम बात कर रहे थे जिसमें सॉफ्ट स्किल पर बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पे, वो है एटीट्यूड, ठीक है। तो एटीट्यूड जो है, अब ये दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां 50 कैंडिडेट्स सबको नॉलेज है इंजीनियरिंग की,
उसमें से 15-20 ही ऐसे निकले कि जिन्होंने स्किल्स भी डेवलप की, है ना, प्रेजेंटेशन की स्किल डेवलप की, कम्युनिकेशन की स्किल डेवलप की, और उन्होंने लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप कर ली। लेकिन अब अगर हम पैरामीटर यहां पर एटीट्यूड का लाते हैं तो बिलीव मी, अब रेशो और कम हो जाएगा। अब बहुत कम कैंडिडेट ऐसे होंगे कि जिनका एटीट्यूड वैसा होगा जैसा ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए। और एटीट्यूड की क्या इंपॉर्टेंस है? एटीट्यूड की ये इंपॉर्टेंस है कि अगर आपका एटीट्यूड राइट है तो उसका एडवांटेज खुद आपको भी होगा, आपके साथ काम करने वालों को भी होगा, और आपकी पूरी कंपनी को आपके एटीट्यूड का एडवांटेज होगा। अगर आपका एटीट्यूड रॉन्ग है, भले ही आप में कितनी नॉलेज हो, भले ही आपने कितना ही स्कोर किया हो, बहुत आप कॉलेज के टॉपर रहे हो, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड रिजर्व है, आपका एटीट्यूड एरोगेंट है, आपका एटीट्यूड सेल्फिश है, तो इस एटीट्यूड का बेनिफिट ना आपको होगा, ना आपके जो साथ में काम करने वाले उनको होगा, और ना ही कंपनी को उसका बेनिफिट होगा। तो यहां पर इन तीनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी है वो है राइट एटीट्यूड। राइट एटीट्यूड अगर आपका होगा, सो बिलीव मी, आपको अपने गोल अचीव करने में कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, अगर आपका एटीट्यूड राइट होगा तो लोग आगे बढ़कर आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपका एटीट्यूड राइट होगा तो आप अपने जो भी टास्क है उसको बहुत इजीली हैंडल कर पाओगे। ठीक है, अब एटीट्यूड क्या होता है, अब हम इस पे बात करते हैं। ठीक है, एटीट्यूड आमतौर से कैसा होना चाहिए, चलिए कौन बताएगा? आमतौर से हम बात करते हैं ना एटीट्यूड के बारे में, तो कैसा एटीट्यूड होना चाहिए? यस प्रशांत, प्रशांत से समथिंग, किस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए? व्हाट टाइप ऑफ एटीट्यूड? पॉजिटिव। ओके, और कौन बताएगा? पॉजिटिव मतलब अच्छा एटीट्यूड, अच्छा सोचने वाला एटीट्यूड, यही ना? पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब यही होता है कि किसी भी सिचुएशन में अच्छा सोचो। हम आमतौर से कहते हैं ना, कम ऑन बी पॉजिटिव, है ना, ऐसा मत सोच, वैसे मत सोच। तो यहां पर एक चीज मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करता हूं कि अच्छा, यहाँ शिवम कहते हैं कि हम्बल एटीट्यूड। ठीक है, तो यहां पर एक चीज मैं बताता हूं आपको, देखिए, एटीट्यूड ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ठीक है, राइट एटीट्यूड। अब यहां से आप जो है एटीट्यूड के ताल्लुक से जो है अपना थोड़ा सा करेक्शन ये करिए कि एटीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव होने से फायदा और नुकसान नहीं होता है। जिस सिचुएशन में जैसा एटीट्यूड चाहिए, मेरा वैसा एटीट्यूड होना चाहिए, उसको कहते हैं राइट एटीट्यूड, है ना। जैसा फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर कंपनी में जाता हूं, है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड, और मुझे मैनेजर बना दिया गया है, और मेरे हाथ के नीचे जो मेरे सबॉर्डिनेट्स है वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, ठीक है, और मैं उनको डांटने की कोशिश करता हूं, मैं उनके ऊपर प्रेशर लाने की कोशिश करता हूं कि परफॉर्मेंस दो मुझे, नहीं तो मैं तुमको निकाल दूंगा, तो ये तो मेरा नेगेटिव एटीट्यूड हो गया, है ना। तो फिर मैं क्या कहूंगा अपने आप को, अरे नहीं, बी पॉजिटिव, करेंगे, आज नहीं तो कल परफॉर्म करेंगे, थोड़े नए हैं, बाद में परफॉर्म कर लेंगे। यानी अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चला तो क्या मैं अपने टीम से काम करवा कर ले सकता हूं? बिल्कुल नहीं ले सकता। ठीक है, तो जिस सिचुएशन में जैसे एटीट्यूड की जरूरत है, मुझे उस सिचुएशन में वैसा एटीट्यूड मेरा मेंटेन करना होगा, उसको कहते हैं राइट एटीट्यूड। अब एटीट्यूड कैसे डेवलप होता है? तो एटीट्यूड जो होता है वो कैसे बनता है मैं बताता हूं। एटीट्यूड इज नथिंग बट इवैल्यूएशन। देखिए, आई एम गिविंग यू द डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड। ओके, व्हाट इज एटीट्यूड? एटीट्यूड इज नथिंग but the evaluation about myself, evaluation about others, and evaluation about a situation। ठीक है, तो एटीट्यूड बनता है इवैल्यूएशन से। 3 इवैल्यूएशन लगते हैं उसको। एक तो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को मैं कैसे इवैल्यूएट करता हूं, दूसरों को कैसे इवैल्यूएट करता हूं, और किसी भी सिचुएशन को कैसे इवैल्यूएट करता हूं, इसको कहते हैं राइट एटीट्यूड। अब अगर इसमें आपने राइट इवैल्यूएट किया तो राइट एटीट्यूड होगा, अगर रॉन्ग इवैल्यूएट किया तो रॉन्ग एटीट्यूड होगा। जैसा फॉर एग्जांपल,
फॉर एग्जाम्पल आपका कॉलेज का फाउंडेशन डे है, ठीक है, और यहाँ पे दो स्टूडेंट है, दोनों को सर ने कहा, संजय सर ने कहा कि कल तुमको स्पीच देनी है, ठीक है, कॉलेज के बारे में स्पीच देनी है। देखिए, दो के एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप बहुत ध्यान से सुनिए इसको, मैं बता रहा हूं आपको दो तरह के एटीट्यूड कैसे होते हैं। दो स्टूडेंट को सर ने कहा कि कल तुमको सबके सामने स्पीच देनी है। एक स्टूडेंट कहता है खुद को, अब तो मर गए, मुझे तो नहीं आता, मैंने तो कभी नहीं दिया और मुझसे नहीं हो पाएगा। ये क्या था उसका इवेल्युएशन अबाउट वन सेल्फ, खुद के बारे में क्या इवेल्युएट किया उसने, नहीं मैं नहीं कर सकता, मैंने पहले कभी किया ही नहीं तो मैं कैसे कर सकता हूं, ये खुद के बारे में इवेल्युएशन। उसका दूसरे के बारे में इवेल्युएशन क्या है, इतने सारे लोगों के सामने, अरे वहां तो टीचर्स भी बैठेंगे, प्रिंसिपल भी बैठेंगे, वो गेस्ट भी बैठेंगे, और उनके सामने नहीं नहीं, उनके सामने तो मैं नहीं दे सकता। ये क्या किया उसने, दूसरे के बारे में इवेल्युएशन। और तीसरा इवेल्युएशन उसका सिचुएशन के बारे में। सिचुएशन क्या है कि सबके सामने उसको स्पीच देनी है, तो सिचुएशन के बारे में उसका इवेल्युएशन क्या है, स्पीच, वो भी सबके सामने, और वो भी इंग्लिश में, नहीं नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, मैंने कभी किया नहीं ना, अब कैसे कर सकता हूं। ये है पहला कैंडिडेट। दूसरा कैंडिडेट का इवेल्युएशन देखिए कैसा है, दोनों सेम है, दोनों ने कभी स्पीच नहीं दी है। दूसरा का इवेल्युएशन खुद के बारे में क्या है कि हाँ मैंने पहले कभी स्पीच नहीं दी है, लेकिन ऐसे बहुत सारे काम है जो लाइफ में मैंने पहली बार किए थे और उसमें मैं सक्सेसफुल रहा, चलो ट्राई करके देखते हैं, खुद के बारे में। दूसरे के बारे में उसका इवेल्युएशन ये है कि ठीक है वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, गेस्ट होंगे, तो क्या हुआ, ये मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने पूरे कॉलेज को बता सकूं मेरा क्या टैलेंट है, मेरे अंदर क्या स्किल्स है, और मैं अपने आप को कल सबके सामने इंट्रोड्यूस करने का मेरे को एक मौका मिल जाएगा, और ये सारे लोग जो है दे विल बी इंप्रेस्ड बाय मी। और मुझे स्पीच देने के लिए क्यों कहा गया है, इसका मतलब प्रिंसिपल सर को पता है मैं ये काम अच्छे से कर सकता हूं, इसलिए उन्होंने मुझे कहा है। ये है दूसरों के बारे में इवैल्यूएशन। और सिचुएशन के बारे में इसका इवैल्यूएशन क्या है कि स्पीच देनी है, ठीक है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि रोज रोज अपॉर्चुनिटी नहीं आती है पूरे कॉलेज के सामने इंटरैक्ट करने का, रोज रोज अपॉर्चुनिटी नहीं आती है अपना टैलेंट दिखाने का। तो ये जो सिचुएशन आई है ये एक अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं थोड़ा सा प्रिपेयर कर लूं तो मैं कल बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे सकता हूं। अब मुझे बताइए, ये दो कैंडिडेट है, दोनों का इवैल्यूएशन आपने देखा, खुद के बारे में, दूसरे के बारे में, और सिचुएशन के बारे में। कौन सा आपको एटीट्यूड राइट लगा, कौन सा एटीट्यूड आपको रॉन्ग लगा? फर्स्ट और सेकंड? यस, विच इज द राइट एटीट्यूड? विच एटीट्यूड हेल्प्स टू प्रोसीड इन द करियर? कौन सा एटीट्यूड उस स्टूडेंट को करियर में आगे बढ़ने पे हेल्प करेगा? सेकंड, हाँ सेकंड। गौरव ने कहा सेकंड, और निशिगंधा ने कहा कि पॉजिटिव। देखो फिर मैं कह रहा हूं आपको, एटीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है, एटीट्यूड राइट एंड रॉन्ग एटीट्यूड, समझ रहे आप? देखिए अब मैं आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को यहां पे रॉन्ग प्रूफ करता हूं, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अब एक तीसरा कैंडिडेट है, उसको भी कहा गया स्पीच देना है, और वो क्या कह रहा है मालूम, डर मत कुछ नहीं होगा, नहीं डर मत कुछ नहीं होगा, हो जाएगा हो जाएगा, नहीं डर मत कुछ नहीं होगा। ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन सिर्फ ये बोलने से काम चलेगा क्या, डर मत कुछ नहीं होगा? तो ये है पॉजिटिव, लेकिन उस सिचुएशन में रॉन्ग एटीट्यूड है। राइट एटीट्यूड क्या है, काम मुश्किल है, थोड़ी मेहनत करे तो आसान हो जाएगा, इसको कहते हैं राइट एटीट्यूड, ठीक है? तो यहां पर अगर हम देखें तो आपके एटीट्यूड तीन तरह के हो गए, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड राइट एटीट्यूड। नेगेटिव एटीट्यूड हर जगह काम नहीं आएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड हर जगह काम नहीं आएगा, लेकिन राइट एटीट्यूड विल हेल्प यू इन एवरी सिचुएशन, ठीक है? चलिए, सो ये था आपका एटीट्यूड, ओके? और आजकल कंपनीज में एटीट्यूड की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यू they just check your attitude, because they know you have studied engineering,
सो यू मे हैव इनफ नॉलेज अबाउट इंजीनियरिंग। उनको पता है आप इंजीनियरिंग कॉलेज से आए हो तो आपको इंजीनियरिंग की नॉलेज तो होगी ही होगी। तो वो आपका कंपटीशन आपकी इंजीनियरिंग के नॉलेज के बेस पर नहीं करते, बल्कि आपके एटीट्यूड, आपकी जो पर्सनालिटी है उसके बिना पर कंपैरिजन होता है कैंडिडेट्स के बीच में। बिकॉज अगर आप एचआर की रिपोर्ट्स देखेंगे, एवरी ईयर द एचआर एसोसिएशन ऑफ इंडिया दे इशू अ रिपोर्ट, एंड इन दैट रिपोर्ट दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो एक एचआर रिपोर्ट में ये बताया गया था कि सारे एचआर ये कहते हैं कि जब कैंडिडेट हमारे पास इंटरव्यू को आते हैं तो हम उनको 10 क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो 10 में से सिर्फ हम 3 क्वेश्चन उनको उनके फील्ड से रिलेटेड पूछते हैं, बाकी 7 क्वेश्चन हम उनको यहां वहां के कई और के क्वेश्चन पूछते हैं टू चेक देयर एटीट्यूड। क्योंकि हमको पता है अगर 50 कैंडिडेट है इंजीनियरिंग के तो सबको इंजीनियरिंग आती है, तो इनको इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछकर क्यों टाइम वेस्ट करना। इनको जनरल क्वेश्चन पूछा जाए, इनको इनके पर्सनल क्वेश्चन पूछे जाए, इनको फ्यूचर के बारे में पूछा जाए, इनको पास्ट के बारे में पूछा जाए, ताकि उनका एटीट्यूड पता चले। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट the requirement of personality development. If you want to develop your personality, you need to work on these 4 letters: ASK, attitude, skill and knowledge. Okay, तो अब जो भी आपकी क्वालिटीज है, जो भी स्किल्स है, अब उसको ऐसा रैंडमली नहीं देखना है। आपको आपको अपना हिसाब रखना होगा कि नॉलेज, कितनी नॉलेज लेनी है, स्किल्स, कौन से स्किल्स डेवलप करने हैं, और एटीट्यूड, कौन सा और कैसा एटीट्यूड मुझे डेवलप करना है जो मुझे अपने करियर में आगे जाने के लिए हेल्प करेगा। So it was all about for today's session, as we don't have much time, as sir told me to go for 30 minutes, but we can do one thing. We can have question answer session. If you want to ask anything about personality development, you can ask. I am there. Yes sir, Sanjay sir. Better what I am asking, what I am thinking. What I want कि मैं स्टूडेंट्स के क्यूरीज को हैंडल कर सकूं, है ना, ताकि जो उनके डाउट्स है, जो क्यूरीज है, दैट विल बी बेटर। ठीक है, चलिए, सो वन बाय वन यू शुड रेज द हैंड एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट स्किल्स, एटीट्यूड। हाँ, you can, yes, or you can ask me directly, yes. देखिए मेरा प्रोफेशनल नेम जो है ना, मैं वहां लिखता हूं आपको। आप यू कैन गो टू यूट्यूब एंड यू कैन वॉच माई वीडियोज ऑल्सो। आस्क परवेज खान इज माई सोशल आईडी। Yes, ask the questions. Mr. Parvez. Yes, sir. Extremely sorry, I could not listen your total lecture, full lecture. So it is my humble request to you, whenever you are going to deliver the lecture at any institute, if it is that lecture is online, please provide me the link. I want to listen carefully your lecture. Definitely, sir. Definitely, I will. Part of your lecture, just I listened it, so it was very nice. So definitely, I would like to attend your full lecture. Okay. Definitely, sir. I will share. I will share with you. Or if I have some recorded lecture, I will send you the link. I have some recorded lectures also. Yeah, I have more than yes. I have more than 600 minutes. Recorded as well. Yeah. I will send definitely. Are you having the lectures on YouTube? Yeah, of course, sir. I have my own channel that I sent in the chat box. Ask Parvez Khan. My YouTube channel is in the name of Ask Parvez Khan, and there you will find more than 500 videos. Okay. So that will be better for me. Okay, thank you. Very much. Thank you, sir. Thank you so much for your appreciation. Yes. So Bhakti Patil is asking how to develop positive attitude. Okay. Yeah. So question is how to develop positive attitude. देखिए मैं एक बार फिर आपको यहाँ पर फिर से एक बार करेक्ट करता हूँ। एटीट्यूड जो होता है ना, एटीट्यूड पॉजिटिव नेगेटिव बोलने की बजाय आप ये बोलिए कि हेल्पफुल एटीट्यूड एंड
अनहेल्पफुल एटीट्यूड। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि पॉजिटिव एटीट्यूड से भी नुकसान होता है, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड से भी नुकसान होता है और नेगेटिव एटीट्यूड से भी फायदा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा ना कि आपको एक असाइनमेंट सबमिट करना है, ठीक है, और आज वो डिक्लेयर किया है और 8 दिन बाद आपको सबमिट करना है। अब आपको उसका प्रेशर आ रहा है, टेंशन आ रहा है, ठीक है, और आपका दोस्त कहता है कि अरे डोंट वरी, थिंक पॉजिटिव, हो जाएगा, थिंक पॉजिटिव, हो जाएगा, कुछ नहीं, हो जाएगा। और आप क्या कर रहे हो, थिंक पॉजिटिव कर रहे हो जाएगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा, टेंशन मत लो, हो जाएगा। और टाइम नजदीक आ गया और आपको कोई रिसोर्सेस ही नहीं मिले अपने असाइनमेंट को सबमिट करने के लिए, ठीक है, और आप सबमिट नहीं कर पाए, तो यहां पर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ने आपको नुकसान में डाल दिया। वहीं पर नेगेटिव एटीट्यूड ये है कि असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये सबमिट नहीं हुआ तो मार्क्स कम आएंगे, एग्जाम में तुम फेल हो सकते हो। अब हम इसको बोलने के लिए तो नेगेटिव एटीट्यूड बोल रहे, लेकिन जब ये सोच आपको आएगी तो आप ज्यादा मेहनत करोगे, ज्यादा लोगों से कोऑर्डिनेट करोगे, ज्यादा रिसोर्सेस का इस्तेमाल करोगे और टाइम पर अपना असाइनमेंट सबमिट कर दोगे। तो इससे तो ये पता चलता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड से नुकसान हो सकता है और नेगेटिव एटीट्यूड से भी फायदा हो सकता है। तो ये बोलना कि पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड, इसके बजाय ये बोलना बेटर है कि हेल्पफुल एटीट्यूड। तो वो नेगेटिव एटीट्यूड नहीं था जिससे मेरा असाइनमेंट सबमिट हो गया, वो हेल्पफुल एटीट्यूड था। उस सिचुएशन में वैसा सोचना मेरे लिए हेल्पफुल था, ठीक है। तो इसको कहते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड नेगेटिव पॉजिटिव की जगह हेल्पफुल और अनहेल्पफुल होता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर आपके पास एक बैग है, उसमें बहुत सारा पैसा है और आप मॉल में गए हो और मॉल में पहले ही सिक्योरिटी गार्ड ने कहा है कि देखिए अगर पैसे है तो संभालिए, यहां पर बहुत चोरी होती है, और आप कह रहे हो नहीं 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 होती है, अरे चोरी थोड़ी होती है, ऐसे थोड़ी, मॉल में कौन चोरी करता है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका, लेकिन बैग चोरी हो सकता है। लेकिन वहां पर नेगेटिव एटीट्यूड ये कह रहा है कि हाँ यार, पैसे चोरी हो सकते हैं तो इसे संभाल के रखना चाहिए। एक काम करते हैं, बैग में कार में रख के आ जाता हूं और कार को लॉक कर देता हूं, तो यहां आपके पैसे बच गए। तो इससे ये पता चलता है कि पॉजिटिव नेगेटिव के बजाय एटीट्यूड हेल्पफुल और अनहेल्पफुल होता है। चलिए अगेन अगेन, व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स हैज टू बी डेवलप। ओके, सो भक्ति पाटिल, आई होप यू गॉट माय पॉइंट, है ना, एटीट्यूड के बारे में। तो एटीट्यूड को राइट और सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव बोलने की बजाय हेल्पफुल एटीट्यूड और हार्मफुल एटीट्यूड, इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स हैज टू बी डेवलप। सो श्रायु, आई विल टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन शुड बी डेवलप, ठीक है, क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, ठीक है। यानी जिस जिस फील्ड में कम्युनिकेशन की जरूरत है, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स, मार्केटिंग, अगेन ट्रेनिंग, ऐसे बहुत सारी फील्ड्स है जहां कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है ना। सो कम्युनिकेशन सबसे पहले, उसके बाद लीडरशिप क्वालिटी, आपकी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए। उसके साथ साथ टीम वर्क एबिलिटी, ठीक है, टीम अडेप्टेबिलिटी भी इसको हम बोलते हैं। तो ये क्वालिटीज आपके डेवलप होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे स्किल्स है जो हर फील्ड में इसकी रिक्वायरमेंट है, हर फील्ड में इसकी रिक्वायरमेंट है। अगेन वन मोर क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स वी वांट टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग एक्सक्लूडिंग कम्युनिकेशन। अच्छा, कम्युनिकेशन के अलावा, तो कम्युनिकेशन के अलावा मैंने कहा ना, लीडरशिप क्वालिटी। देखिए लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि एक बंदा जिसके अंदर लोगों को लीड करने की एबिलिटी हो। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि क्या होता है आजकल, जो भी कंपनी जब एम्प्लॉय को रिक्रूट करती है तो वो उसके अंदर फ्यूचर लीडर देखती है। वो ये चाहती है कि ये सिर्फ अपना काम ना करे, आगे चल के ये एक पूरे डिपार्टमेंट को संभालने के लिए कैपेबल हो जाए। तो लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो है आपका जो माइंड प्रोग्रामिंग है ना, यानी आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए। रैशनल थिंकिंग, उसको भी हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलूंगा मैं कि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। थिंकिंग रैशनल होनी चाहिए, यानी ऐसी सोच जो मेरा काम निकाल दे, मेरा काम नहीं रुकना चाहिए, उसको कहते हैं रैशनल थिंकिंग। तो ये जो कुछ स्किल्स है जिसकी रिक्वायरमेंट है, हर फील्ड में उसकी रिक्वायरमेंट है, ये स्किल्स आपको डेवलप करना चाहिए। अगेन एनी मोर क्वेश्चन।
Okay, Sayyid Arbaz is asking what's more important, communication skill or technical skill? Okay, देखिए जैसे मैंने 3 चीजें आपको बताई ना, आपको किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए ASK चाहिए, ASK यानी एटीट्यूड, स्किल्स एंड नॉलेज। अब अगर आपके पास स्किल है और नॉलेज नहीं है, तो वो जो स्किल है ना, वो क्या हो जाएगा मालूम, उसको हम कहेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंस। बिना नॉलेज रखे अगर आप कोई काम कर रहे हो तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, या हम उसको ओवर स्मार्टनेस बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर किसी भी फील्ड में काम करने के लिए सर्टेन नॉलेज, सर्टेन स्किल और बहुत स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। सिर्फ नॉलेज लेकर भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, सिर्फ स्किल लेकर भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, और सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप रखने से भी कुछ नहीं होगा। ये तीनों को आपको मेंटेन करना होगा, ओके, फॉर एनी फील्ड। और यहां आपने कहा कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है या टेक्निकल स्किल इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए तो कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, और एक बार जॉब लग गई तो फिर अपनी टेक्निकल स्किल्स वहां अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी आप टिकोगे। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल जॉब लेने के लिए चाहिए, और जॉब टिकाने के लिए टेक्निकल स्किल चाहिए, क्रिएटिविटी के लिए टेक्निकल स्किल चाहिए, इनोवेशन के लिए, डिस्कवरीज के लिए आपको टेक्निकल स्किल चाहिए। और हर स्टेज पर अपनी टीम को, अपने जूनियर को, अपने सीनियर को एड्रेस करने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल चाहिए आपको। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या है, बिल्कुल साथ में चलेंगे, दोनों की जरूरत एक साथ है। Okay, so if you don't have any question, so I hope this training program helped you, and whatever we have discussed here, you will implement in your day-to-day life, and it will help you to build a better career. And for more detail, you can connect to me. Okay, you can visit my YouTube page, you can visit to my Facebook page, Ask Parvez Khan, and I hope soon we will have a session in your college also for 1 day or 2 day. And we will have some practical things we will discuss there also. Yeah, so thank you so much, sir. If we don't have anything else, shall we stop here? Yeah, thank you so much. Thank you. I'm very grateful to you that you accepted my request and spared your valuable time. It's my pleasure, sir. I'll ask you to please have some lecture for our students. So, in a short time, I hope this pandemic will over and we will meet soon. Definitely. So Yes, sir. welcome in the college campus physically. Thank you very much. Definitely. Thank you so much, sir. Thank you. Students for joining the session, and hope you have gained many things from Parvez sir, or you are inspired from his lecture. His lectures are available on YouTube as well, and hopefully in the coming session he will be in our campus for some program, some other event. So thank you once again, Parvez sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Principal Vanke sir and all participants, Mr. Gurmale sir, Niranjan madam, and with the permission of chairman, I declare this program as come forward. Thank you, sir. Thank you. All the best. All the best, everyone. Thank you.